Hello guys! I'm making a pre-video for KGF movie reaction. So I wanted to tell you, first of all, thank you a lot for waiting so much for this movie reaction. It took me a little while to edit it. Also, I wanted to tell that due to policies and disclaimers, I cannot put the entire movie with all the music on it. So I will be reacting to the whole movie, but I need to skip some parts. I need to lower some volumes to avoid copyright inconvenience. So this is why I'm doing it like that, even though I hope that you guys like it. Also, I was trying to find the movie in Telugu language, that is the original language of the movie, but it was really hard. I am not having exactly the same devices that you guys have. Like my Amazon is not exactly the same as Amazon Prime from India, even though Netflix things are not showing exactly the same as if you are in India. The same thing happens with Disney. We have Disney, you have Disney Plus, and something else. I don't know what is the extra word that you guys have for Disney. So I'm sorry about that, even though HBO Max for us is different than HBO Max from India. So it was hard for me to find it here in my country, Peru, and have it in the original language. But I will make sure that the next movie that I will react, I will do it with the original one, because I always like to watch with the original language. Many things you can miss in the expressions and stuff like that. So I always prefer the original one. But even though, as I said, I hope that you guys can enjoy it. So guys, thank you so much, and let's start the video. Hola everyone, this is Claudia and this is my cousin Giovanni. Hi everyone. Welcome to my channel Latin Reactions one more time. Today I am really happy and excited because finally we are going to react to the entire movie KEF. I received a lot of comments about it that you want me to react to this movie so much, and I didn't want to do it alone. So I called my cousin. He has never watched any of this type of action movie from India. How do you feel about it? I'm pretty excited because you told me a lot about this movie, so Yeah. we wait until the weekend. So I'm pretty excited to see it. Yes. And guys, for me, it was really hard to find a movie that is having a subtitle in Spanish. So I think that this movie is in Hindi. I wanted to listen to watch it in the original language, but it was difficult for me to find it, and I prefer to watch it with Spanish subtitles so we can understand the entire movie easily. Okay? So well, without any further delay, let's start it right now. Let's go. I like this double meaning thing. This is the actor. This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है, मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी,
लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ तक ला पाया। दीपा, कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। सर, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। आई हैव एन इंटरव्यू टू टेक इन दिल्ली एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी तय किया है, मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं इस टीवी चैनल का ओनर जरूर हूं, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूं। वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये किताब को सोच कर ही लिखी होगी। आधे घंटे का टाइम देती हूँ, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। जर्नलिस्ट हैं, छोटे मुद्दों को भी खोदकर उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे। हम सोचे थे बेंगलोर आकर के कोनो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या इन लोगन के बीच आकर के फंसे चमचागिरी की तो भी कोनो फायदा नहीं हुआ। हम सोचे वापस गांव चले जाए, लेकिन हमारा कर्जा ही खत्म नहीं हुआ। सर सूप देंगे सूप। चल भाग। हे देवी माँ, कोनो रास्ता दिखाकर हमारी नैया पार लगा दो। मैडम, रेप के जिम्मेदार सिर्फ मर्द होते हैं क्या? शट अप मिस्टर शर्मा। अरे बाप रे, ये तो हर किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती हैं। अपने आर्काइव रूम में दीपा मैडम को कॉफी कौन देगा? स्टोरी कह के लिखा है। आपकी इस कल्पना में Based on true story. अब तो पढ़ेंगे ना? No, because it's not true story. You mean the lost city of gold? हजारों सालों से ये सोच करके कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता, है कि नहीं? Possibly. इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना। वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। कहाँ है आपका कहाँ है? एल्डोराडो? It looks alright, like superpower movie, you know, like the beginning. केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनूर मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिन में मेरी शादी है सर। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो? अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगल की है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं।
लेकिन इनमें से केजीएफ के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं, कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। Now we are going to start watching the story of this guy. दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में केजीएफ They're doing both things at the same time. She was really young. She's getting sick. Too sick. सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। उस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती They were लाकर having slaves माइनिंग there. करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। Oh, look at people. 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। What do you mean? उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है, तुझे नहीं पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए।
पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो मेरी जगह है। मुंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। असु बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा। पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस ओ साहब पुलिस। शेट्टी सब लोग इसको सलाम मारते हैं। ये बम्बई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? I think कोई so. है? You have nothing to lose. मिल गया रे साला। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरे जान। नो What? रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इस नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ सब। अंधेरी में बिठाया था उसको। मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिक्र मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए, किधर गया था मैं तू? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। दुनिया It's really badass. सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर द्वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रयूज का कंट्रोल था। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सबके सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत खराब होने लगी।
पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। Now start the head fights. सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया। किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन रॉकी, रुक जाओ सलीम भाई, रॉकी नहीं मिला है। मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो जाओ। सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? वो मिल गया, चलो। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल, तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू साहब, पुलाव लेकर आ। ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना। रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, मार लेके आ जाओ। ये चलो। हिदायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, Oh, Dios mío. उसकी Oh my दोनों God. आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? छोटू पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है सर। या खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता, ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। But even though people are scared about him, even though he's tiger. वो कहाँ है? लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। Happy birthday to you. Happy birthday. अरे तूफान को लटकाते नहीं। ये क्या है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। I don't think so. बम्बई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो लाली है। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में जोड़ दिया गया। इधर गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीटा गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप का है क्या बे? नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप
मैं हूँ। Feels like John Wick. Yeah, it feels like actually. क्यों बे? No, this guy. सिर्फ इतने में ही डर गया? उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। Like a girl, while Rocky didn't touch him. तो कोई था कुठे रे? It was his birthday. भाई वो देखो। What is the butcher's knife? बम्बई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे आना हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। बोल, हाथी का शिकार करने वाला बम्बई में मिल गया है। Okay, guys, this video is first part. It is really exciting. How are you feeling about the movie? The introduction of the character it's amazing. I really like it. I'm enjoying this first part of the movie. So Let's keep watching. yeah. Let's keep watching. I'll see you in the next part. Thank you.